السلام علیکم ناظرین، روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بی جے پی اگلے اسمبلی انتخابات میں مشن 90 کے نشانے پر کام کرے گی۔ 7 جنوری کو قومی صدر بوتھ لیول پریزیڈنٹ سے کریں گے خطاب۔ ریاست میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے حکومت کوشاں، ریاستی وزیر ٹی سریواس یادو کا بیان۔ میٹرو ریل کانٹریکٹ امپلائیز کا احتجاج جاری، تنخواہوں میں فوری اضافہ کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ بی آر ایس کو شکست دینے متحدہ جدوجہد کی ضرورت، ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی نے قائدین کے تربیتی اجلاس سے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ چنئی کی ایکسل کمپنی کے دفاتر پر آئی ٹی عہدیداروں کے بیک وقت دھاوے، ٹیکس چوری اور فنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر ٹی سریواس یادو نے بتایا کہ ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں اسپورٹس کو کافی حد تک فروغ دینے کے اقدامات کر رہی ہے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ گرمائی تعطیلات کے موقع پر جی ایچ ایم سی کی جانب سے کوچنگ کیمپس کا بھی انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر اسمبلی حلقے میں اسٹیڈیم اور منی اسٹیڈیم قائم کرنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکمہ جات میں کھلاڑیوں کے لیے 2% تحفظات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بی جے پی ریاست تلنگانہ کے اگلے اسمبلی انتخابات میں 90 نشستیں جیتنے کا نشانہ لگا کر انتخابات میں اترے گی اور اس سلسلے میں زمینی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی ریاستی یونٹ کے ذرائع کے مطابق قومی صدر بی جے پی جے پی نڈا 7 جنوری کو تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقوں کے بوتھ سطح کے پریزیڈنٹ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق تقریباً 4000 بی جے پی مقامی قائدین اس ویڈیو کانفرنسنگ میں قومی صدر سے جڑیں گے۔ توقع ہے کہ اس ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران پارٹی صدر اگلے انتخابات میں پارٹی کی جانب سے اپنائے جانے والی حکمت عملی سے واقف کروائیں گے۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے اپنے ضلع نلگنڈے میں ڈائلسس سینٹر کا افتتاح انجام دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گردے کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو نہ صرف مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کی ہے بلکہ مفت بس پاس کے علاوہ آسرا وظائف کے تحت انہیں 2000 روپے وظیفہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ ملک کی کسی بھی دوسری ریاست میں اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ ریاست میں بستی دواخانوں کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ٹکٹ کلیکٹرز نے آج دوسرے روز بھی اپنے 7 مطالبات کو لے کر ہڑتال کی اور ناگل میٹرو ریلوے اسٹیشنز پر دھرنا منعقد کیا۔ ٹکٹ کلیکٹرز کے ساتھ میٹرو ریل کے ذمہ داروں نے بات چیت کی، لیکن یہ بات چیت آخری اطلاعات کے مطابق ناکام رہی۔ تاہم سب کنٹریکٹرز نے ملازمین کی تنخواہ میں صرف 1000 روپے اضافہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ ٹکٹ کلیکٹرز نے ان کی تنخواہ 25,000 روپے کرنے اور ہفتے میں 1 دن تعطیل دینے کے علاوہ دوپہر کے وقفے کو 5 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ کرنے کے ساتھ ساتھ میٹرو میں مفت سفر کی سہولت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے بوئن پلی میں منعقدہ 1 روزہ تربیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کو شکست دینے کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کی یہ تہذیب رہی ہے کہ اس کے پاس عہدے اور اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جس کی مثال یہ ہے کہ سونیا گاندھی نے خود وزیر اعظم کے عہدے پر فائز نہ ہو کر منموہن
मनमोहन सिंह को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया था। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने से गुरेज कर रही है। इस इजलास में भट्टी विक्रमार, अंजन कुमार यादव, मुकेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। ఒక 4-5 వందలలో మనం వచ్చినాము అని అంటే ఇది పార్టీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు మనకిచ్చిన గుర్తింపు, గౌరవము, మర్యాద. ఈ గౌరవ మర్యాదలను నిలబెట్టి ఈ పార్టీ ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా పార్టీ యొక్క నాయకుడి యొక్క సందేశాన్ని తీసుకెళ్లవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క క్రమశిక్షణ కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల కార్యకర్తల మీద ఉన్నది. అందుకే మిత్రులారా, మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. అంశాలకు లోబడి విషయ పరిజ్ఞానంతో మనం చర్చించుకొని నిపుణులు ఇచ్చే సందేశాన్ని నేర్చుకొని అవగాహన కల్పించుకొని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ధరణి వల్ల ఎదుర్కొంటున్న లక్షలాది మంది యొక్క రైతులు, పేదల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి 43 లక్షల మంది సభ్యులు మన పార్టీలో చేరినరు. వాళ్ళకు మనం ప్రమాద బీమాను ఏర్పాటు చేసినాం. ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తు కాలు, చెయ్యి, కన్ను ఏది పోయినా, లేదు ప్రాణం పోయినా सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को चारशंबे के रोज़ बोयनपल्ली में मुनक़िद होने वाले इजलास में नाराज़ कायदीन को शिरकत करने की हिदायत दी गई थी, ताहम नाराज़ कांग्रेस कायदीन का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तरबियती इजलास में नाराज़ कायदीन में से सिर्फ CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की और अहम नाराज़ कायदीन अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी, रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और महेश्वर रेड्डी ने अपने आप को इस इजलास से दूर रखते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो अभी भी रेवंत रेड्डी से नाराज़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बदाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल और शिकायत की बरवक्त यकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। वाहिदनगर में जारी तरक्याती कामों का रुकन असम्बली ने चारशंबे को मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा दौरा किया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जहाँ भी ज़ेर इल्तिवा काम है उसे फ़ौरी मुकम्मल किया जाए। वाहिदनगर में जारी बॉक्स ड्रेन के काम से मुकामी अवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। रुकन असम्बली की अंतक जदोजहद से हल्के मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए इजलास तलब करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी जा रही है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी हुदूद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती काम जारी हैं। सदर नशीन म्यूनसिपालिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि वार्ड नंबर 27 में 50 लाख रुपए के मुसारिफ से CC रोड और ड्रेन के काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि ड्रेन का काम तकरीबन मुकम्मल भी हो चुका है, जबकि सड़क का भी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपालिटी हुदूद में मुसलसल तरक्याती काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 27 में 50 लाख की रोड और ड्रेनेज का काम आज पूरा हुआ है। आज रोड का काम स्टार्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेनेज का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो आउटलेट जो बड़ के झाड़ के पास जो कई सालों से लोग वहाँ पर मुतासर थे, जब भी बारिश आती थी वहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी जमा हो जाता था। उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के काउंसलर इकबाल बिन खलीफा साहब, नुमाइंदा काउंसलर इकबाल बिन खलीफा साहब की नुमाइंदगी पर हम काउंसिल में लाकर मैडम के उसमें लाकर हम यहाँ पर 50 लाख रुपए सेंक्शन किए। ड्रेनेज और रोड के तूर कॉलोनी और अपने तैयबा कॉलोनी और यहाँ के ड्रेनेज लाइन के लिए 50 लाख रुपीस सेंक्शन किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका पूरा काम मुकम्मल हो चुका है
और वहाँ पर 60 लाख लीटर जो पानी से जो मुतासिर है लोग, जो पीने के पानी के लिए हर जहाँ पानी की सरबराही नहीं है, तो वहाँ पर 60 लाख लीटर की भी टाकी बनाई जा रही है, जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए है। पूरा जहाँ जहाँ अभी पाइपलाइन नहीं है पानी के, वहाँ पर पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। जहाँ नहीं हुई, आप वहाँ के एरिया के काउंसलर से या कंसर्न ऑफिसर से रब्ता कीजिए, जो भी मुकाम पे या एरिया में जलपली म्यूनसिपाल्टी में जहाँ पानी का काम नहीं हुआ, काउंसलर को या मुकामी ऑफिसर को या वाटर वर्क्स के ऑफिसर को कंसल्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द वहाँ पर पानी पीने का पाइपलाइन बिछा देंगे। और रहा मसला जो हमारी काउंसिल आने के बाद जितने तरक्याती काम जलपली म्यूनसिपाल्टी में हो रहे हैं, बड़े रोड्स के या छोटे, जो सब गलियों के जो ड्रेनेज लाइन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासिर एरिया हमारा वार्ड नंबर 3 था, जहाँ पर SMDP का 7 करोड़ का नाला लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम ख़त्म पे है, मुँह पे है, वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। लोगों को जो बारिश में जो मसला हो रहा था, वहाँ पर जो घरों में पानी जमा हो जा रहा था 4-4, 5-5 फीट, वो मसला नहीं आएगा। हम इंशाल्लाह अक्ल काम कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जितना हो सके बड़े रोडों के लिए, सब गलियों के लिए, जितना हमारे पास बजट है, हम जितना हो सके हमारे एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे अलहाज बैरिस्टर सदरी नबी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अनवर मैडम की हिदायत पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 20 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए गए। इस्तेफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के पैदल दौरे जारी हैं। उस सिलसिले के तहत आज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके किंग कॉलोनी और शास्त्रीपुरम फेस 5 के अलावा दीगर इलाके जात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा इस पैदल दौरे के मौके पर महकमे वाटर वर्क्स और महकमे GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे, जहाँ मज़कूरा इलाके जात में HDP वाटर पाइपलाइन की तनसीब के कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों को पाए तकमील किया जा रहा है और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की जा रही है। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन ने के साथ मुतालिका अहदेदार भी मौजूद थे, जिनको मोहम्मद मुबीन ने ज़रूरी हिदायतें दी। महकमे बहबूद व माज़रीन मामरीन की तरफ से चारशंबे को नलगुंडा चौराहा मलकपेट के पास लोइस बरेल की 234वीं यौम पैदाइश मनाई गई। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस तक़रीब में शिरकत की। नाबीनाओं के लिए लोइस बरेल की खिदमात को खिराज पेश किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी इस मौके पर लोइस बरेल की खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि महकमे के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ग्रुप फोटो लेंगे ग्रुप ना साइड पीछे देखिए बच्चियां దేశానికి ఒక ఆశా జ్యోతి లూయి బ్రెయిలీ, ఆయనని మనకు నేర్చుకోవడానికి ఒక ఆశా జ్యోతి లూయి బ్రెయిలీ।
మినిస్టర్ గారు చేతులతో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ప్లీజ్. हमारे शफी साहब और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स मेडचल में पंजुम जमात से दाखिले दिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन जारी है। प्रिंसिपल स्कूल आर सोंपना ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ायम करदा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में तालीम के मेयार पर खुसूसी नज़र रखी जाती है और हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलियात से भी इस्तेफ़ादा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 5वीं जमात से इंटरमीडिएट तक दाखिले खुले हैं और फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं आज स्वप्ना मेडचल गर्ल्स प्रिंसिपल। हमारा स्कूल रामपल्ली एक्सप्रेस नागारम पे है। टिमली स्कूल्स में अच्छा तालीम दिया जा रहे हैं। हमारा स्कूल्स में गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द पूरेस्ट ऑफ द पूर के लिए दे जा रहे हैं। तो हमारा स्कूल में एडमिशन सर ओपन फॉर 5th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक। रजिस्ट्रेशन सर ओपन ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। This is a part of Bangaru Telangana. The education is very important to the every family and the development of the society. Please utilize the opportunity and take admissions. Thank you. हैदराबाद में चारशंबे की सुबह एक्सेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के गच्चीबौली, चंदानगर और बाचूपल्ली के बशमुल 20 मुकामात पर इनकम टैक्स के धावे जारी हैं। बताया गया है कि इनकम टैक्स महकमे की टीमें 40 कारों और 30 CRPF की गाड़ियों में पहुंची थी। इतलात हैं कि कंपनी के 6 डायरेक्टर्स के दफातर पर ये धावे हुए हैं, जबकि ये भी इतला मिली है कि इनकम टैक्स की टीमों ने दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन्स भी अपनी तहवील में ले लिए थे। कहा जा रहा है कि चेन्नई की एक्सेल कंपनी और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अलावा IT, ट्रैवल, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रेडिंग के कारोबार से वाबस्ता है। संगारेड्डी, नारसिंगी, दोंडीगल और कोकापेट में भी कंपनी के दफातर पर धावे हुए हैं और इत्तला ये भी मिल रही है कि लंदन से एक्सेल कंपनी में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी भी हुई है। टैक्स चोरी और फंड्स की मुंतकली को लेकर शुबहात पाए जाते हैं और इसी सिलसिले में ये धावे किए गए। सुबह 6 बजे से धावों का आगाज़ किया गया। मुल्क के दीगर 18 मुकामात पर भी एक्सेल कंपनी के दफातर पर धावों की इत्तला मिली है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में RTC बसों के ड्राइवर्स को ट्रैफिक क़वाइद से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने RTC बस ड्राइवर को ख़बरदार किया कि अगर रास्ते में बसों को गैर ज़रूरी रोका गया तो 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि ड्राइवर्स को ट्रैफिक क़वाइद की पाबंदी करने का भी मशवरा दिया गया। बोयनपल्ली चौराहे के पास चलाई गई इस मुहिम में मुकामी ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे।
चंद्रानूटा पुलिस ने साउथ जोन टास्क फोर्स के साथ मिलकर 27 दिसंबर को हुए मोहम्मद कलीम के कत्ल के मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सैयद गौस का भाई आजम कलीम के साथ रहा करता था। हालांकि गौस भी फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हदूद में सरक़े की वारदातों में मुलविस था, जबकि मुलजिम नंबर 2 मिनहाज भी चोरी और इक़दाम कत्ल के वाक़यात में मुलविस रहा है। गौस अपने भाई आजम को कलीम से दूर रखने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने अपने साथी मिनाज और अकबर के साथ मिलकर कलीम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और 27 दिसंबर को कलीम के घर में दाखिल होकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। हरिबौली के इलाके में आज एक एटीएम से 500 की बजाय 2500 रुपये निकलने लगे। ज़राए के मुताबिक जब 500 रुपये की रकम निकालने के लिए एक शख्स पहुंचा तो मशीन से 2500 रुपये यानी 500 की 5 नोटें निकल आईं। इसी तरह लोग भी जो रकम निकालने आए थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। देखते ही देखते ये खबर फैल गई, लेकिन पुलिस को भी इसकी इत्तला मिल गई। पता चला है कि पुलिस ने बैंक हकाम को इत्तला दी और फिर एटीएम सेंटर को बंद कर दिया गया। बैंक की तरफ से भी इस सिलसिले में कोई बयान सामने नहीं आया है। पैसे कितने निकालने आए थे कि मैं बाहर जा रहा था इनके अंदर कितने की निकल के बोले थे इन्होंने बोले अरे बड़े में ऐसा बोल रहे हैं। फिर कार्ड छोड़ के चले गए तो मैं बुला के दिया, इन्होंने बुलाए तो मैं कार्ड देने लगा, आपसे कार्ड लेके गए हूँ आगे। काउंट करो 5 है 5 बोल तो 2500 आए 2500 हाँ 2500। लंगरोज पुलिस स्टेशन हदूद के मुगल के नाले में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम की जानिब से इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और फिर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि नाश की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा 31 दिसंबर की रात सालाना शब बेदारी और तरबियती इज्तिमा का अहतमाम करते हुए अबुल गदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने कई नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब किया। मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खलीलुल्लाह ओवैस बुखारी डायरेक्टर रिसर्च सेंटर के मुताबिक मस्जिद हज़रत सैयद शाह फैज़ुल्लाह हुसैनी वाक़ शकरगंज में इस शब बेदारी और तरबियती इज्तिमा का अहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद नौजवानों और मुसल्लियान ने शिरकत की। मौलाना ने अपने कलीदी खुतबे में इस अहम इज्तिमा की ज़रूरत, अहमियत और मक़ासिद बयान किए। उन्होंने बताया कि नए साल के जश्न के नाम पर 31 दिसंबर की रात हर मुकाम पर बुराई और बेहयाई व बेशर्मी का बोलबाला होता है। ताहम इसी रात रिसर्च सेंटर की जानिब से तरबियती इज्तिमा का अहतमाम करते हुए बुराइयों से बचाने की भरपूर कोशिश की गई। फरमाया कि कुल फखरुद्दीन या फखरुद्दीन, ऐ फखरुद्दीन ये कहो कि अल्लाह एक है, उसको कोई दलील की जरूरत नहीं हो, बिला दलील एक है, तो इसके लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है। कहो कि भाई कोई दलाइल की जरूरत नहीं, बिला दलील के एक है। यानी कुछ लम्हात के लिए इमाम फखरुद्दीन राज़ी हजरत नजमुद्दीन के पास आए थे, किस इरादे से बैत करूंगा। तो पीर और मुर्शिद वो होते हैं जो हकीकत में होते हैं, वो ऐसे होते हैं अल्लाह ताला, वो ये ना देखें कि वो कमजोर है, मगर ये
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بی جے پی اگلے اسمبلی انتخابات میں مشن 90 کے نشانے پر کام کرے گی۔ 7 جنوری کو قومی صدر بوتھ لیول پریزیڈنٹ سے کریں گے خطاب۔ ریاست میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے حکومت کوشاں، ریاستی وزیر ٹی سریواس یادو کا بیان۔ میٹرو ریل کانٹریکٹ امپلائیز کا احتجاج جاری، تنخواہوں میں فوری اضافہ کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ بی آر ایس کو شکست دینے متحدہ جدوجہد کی ضرورت، ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی نے قائدین کے تربیتی اجلاس سے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ چنئی کی ایکسل کمپنی کے دفاتر پر آئی ٹی عہدیداروں کے بیک وقت دھاوے، ٹیکس چوری اور فنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا الزام۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔